Hello everyone, let us do this nice problem from rotation from the book Pathfinder. So you should try this question on your own before you move on to the solution. So we are given that a thread is wound on two identical bobbins placed on a horizontal floor with their axes parallel. तो ये bobbins क्या होता है? So it's like a cylinder. तो ये जो अंदर वाला dotted circle है, this is a cylinder. And now imagine that two discs are pasted on the two circular sides of that cylinder. तो ये जो छोटा वाला सर्कल है, this is of radius small r, right? Let's say तो स्मॉल आर रेडियस का एक सिलेंडर है, बेसिकली आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, एंड यू टुक टू डिस्क्स विच आर ऑफ अ हायर रेडियस. तो अपने बड़े रेडियस के दो डिस्क्स लिए और सिलेंडर के साइड वाले फेसेस पे स्टिक कर दिया उनको, राइट? सो यू कैन लाइक इमेजिन कि अगर वो बॉडी ग्राउंड पर रोल करेगी, राइट? So from the side it will look like this if you place it on the ground, right? So we have two of these such bobbins. Basically you can say कि bobbins actually are objects which are used to store thread, कि इस पे thread को wound करके we store it, right? So now this is one common thread which is wound on both of these bobbins, and the midpoint of the thread is being pulled vertically upwards with a constant velocity u, right? So if the bobbins roll on the floor without slipping, find velocity of approach of their centers when angle between thread segments become 2 theta. तो ये एक ही थ्रेड है और इस थ्रेड के मिड पॉइंट को हम ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u, एंड एट अ सर्टेन इंस्टेंट द एंगल बिटवीन दीज टू सेगमेंट्स बिकम्स 2 थीटा. तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बतानी है ऑफ द सेंटर्स ऑफ द bobbins, and the bobbins are rolling without slipping on the floor, right? So the first step is to draw a proper diagram, right? So on this side I have shown the small radius and the large radius, right? And in this bobbin I have shown the velocities. So basically ऐसा सोचना है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि जो A point है, which is the midpoint of the thread which is being pulled in the upward direction, right? तो उस point की velocity, तो अगर if I consider this segment AP, where P is the last point which is like you can say the point which is just in contact, right? तो P से इधर वाले जो points हैं, left वाले points हैं, they are not in contact with the bobbin, और P से जो उधर वाले points हैं, they are all in contact, right? They are still wound on the bobbin, right? तो जो AP जो segment है, right, उसका length constant है, right? उसका length constant है. तो the concept is that the velocities of A and P, उनके जो components होंगे, the components of the velocities of A and P along the direction AP, तो thread के along वाले जो components हैं उनकी velocities के वो same होने चाहिए, राइट? क्यों? तो इसको ऐसे सोचेंगे, एक डिफरेंशियल टाइम इंटरवल में सोचो कि एक छोटे से टाइम इंटरवल में, कि अभी करंटली ये सिचुएशन है, ये ओरिएंटेशन है थ्रेड की, और एक छोटे से टाइम इंटरवल में क्या होगा. छोटे से टाइम इंटरवल में ए विल मूव वर्टिकली अपवर्ड्स, राइट? बिकॉज ए की तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एंड पी विल मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन. वी डोंट नो वेयर इट विल मूव, बट इतना पक्का है कि ए और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है. अगर स्ट्रिंग स्लैक हो जाती तो डिस्टेंस कम हो जाता, राइट? बट द स्ट्रिंग इज रिमेनिंग टाइट. तो P इज अ पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग ओनली, तो स्ट्रिंग के ऊपर ही P पॉइंट है और A भी स्ट्रिंग के ऊपर है. तो A एंड P आर 2 पॉइंट्स ऑन अ टाइट स्ट्रिंग, सो द डिस्टेंस बिटवीन देम कैन नॉट चेंज, एंड देयरफॉर इन अ डिफरेंशियल टाइम इंस्टेंट दोनों का जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, राइट, तो उसके दो कंपोनेंट्स अगर सोचे कि एक कंपोनेंट उनका डिस्प्लेसमेंट का पैरेलल टू AP है और एक परपेंडिकुलर टू AP है. जो परपेंडिकुलर टू AP वाला कंपोनेंट है, सो आई एम टेलिंग यू ऑल दिस वर्बली सो यू कैन राइट इट डाउन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ डीपर वे, कि A और P की जो डिस्प्लेसमेंट्स हुए होंगे छोटे से टाइम इंटरवल में, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे. वन कंपोनेंट विल बी पैरेलल टू AP, वन कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू AP. The parallel to AP component can potentially
change the distance between A and P, and the perpendicular to AP component can change the orientation of AP. कि जो A और P का जो perpendicular वाला component होगा velocity का, right, so let me also draw here कि A की velocity का कुछ component इस direction में होगा, क्योंकि A की तो velocity ऊपर की तरफ है, तो उसका एक component इस direction में होगा which is perpendicular to AP, right. ऐसी P की velocity का कुछ component इस direction में हो सकता है या इस direction में हो सकता है. These components will contribute to the rotation of AP. की AP अब rotate होके कुछ ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, right, कि A थोड़ा सा ऊपर चला गया और P थोड़ा सा इधर आ गया leftwards let's say, तो कुछ orientation change हो गया, right. तो the perpendicular components will contribute to the rotation of AP, but the parallel components, the components of their velocities parallel to AP will contribute to changing of the distance between them. So this should be very clear कि each component is doing something different, and therefore A और P के जो velocities हैं उनके parallel components बराबर होने चाहिए. In other words, the component of their relative velocity parallel to AP must be 0. कि अगर वो इस A अगर इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव किया तो P भी प्रोपोर्शनेटली इस डायरेक्शन में उतना ही मूव कर गया, राइट, इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, और अगर स्मॉल टाइम इंटरवल में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब देयर वेलोसिटीज मस्ट बी सेम, देयर वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी द सेम, राइट. सो द फर्स्ट इक्वेशन आई हैव रिटन इज V इक्वल टू आर ओमेगा, कि सेंटर की वेलोसिटी V है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, एंड देयरफॉर वी गेट V इक्वल टू आर ओमेगा वेयर r इज द लार्जर रेडियस ओवर हियर. एंड द सेकंड थिंग इज द सेम थिंग कि लेंथ AP रिमेन्स कांस्टेंट, सो कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी, कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ A एंड P बेसिकली अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल. तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, तो हम P पॉइंट की वेलोसिटी लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ V एंड ओमेगा. So P is a point over here, and now the importance of the diagram comes in कि सारे एंगल्स ढंग से मार्क्ड होने चाहिए, राइट. तो हमें A की वेलोसिटी भी अलॉन्ग द स्ट्रिंग लिखनी है, तो हमने ये एंगल थीटा लिख लिया. फिर P पॉइंट यहाँ पे है विच इज़ द पॉइंट वेयर दिस स्ट्रिंग इज tangent to the bobbin. The string is tangent at this point, right. So string makes an angle theta with the vertical over here. Therefore this perpendicular to the string, तो ये तो radius है, तो perpendicular to the string will make theta with the horizontal. The string makes theta with the vertical, therefore its normal, which is the radius, will make theta with the horizontal, right. तो ये diagram बहुत important है. तो P point की velocity कैसे लिखेंगे कि due to rotation उसकी velocity r omega होगी, which is in the tangential direction, which is in the direction of P towards A, जो यहाँ बनाई है मैंने r ओमेगा, और उसमें स्मॉल r मल्टीप्लाई होगा बिकॉज P लाइज ऑन द इनर सर्कल, राइट. एंड अगेन द स्ट्रिंग मेक्स थीटा विद द वर्टिकल, सो यहाँ पे दिस वेक्टर विल ऑल्सो मेक थीटा विद द वर्टिकल बिकॉज स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही है वो वेलोसिटी, ये वाली, बिकॉज स्ट्रिंग भी टेंजेंशियल है और उसकी वेलोसिटी भी टेंजेंशियल होगी r ओमेगा वाली. और जो VCM वाली वेलोसिटी है, जो सेंटर की वेलोसिटी है, वो तो वो भी P को मिलेगी. सो P की वेलोसिटी इज अ वेक्टर सम ऑफ दीज टू थिंग्स, वेक्टर सम ऑफ दीज टू वेलोसिटीज. लेकिन हमें P की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट चाहिए, स्ट्रिंग वाला, तो उसको कैसे लिखेंगे, r ओमेगा तो आ ही जाएगा उसमें, प्लस V का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा. तो अगेन मैंने यहाँ पे एक इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर एक ड्रॉप किया यहाँ पे, सॉरी, सो दिस इज अ परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, सो दिस थीटा, this angle will be theta, and therefore component of V in this direction along the string will be V sin theta. So V sin theta plus r omega is the velocity of P along the string, component of velocity of P along the string. और इसी तरह A का velocity component लिखेंगे तो A की velocity ऊपर की तरफ है, तो A का component velocity का component along the string will be u cos theta. So this is the basic equation. और अब बस ये गिवन है हमें कि स्मॉल r और कैपिटल R का रेशो ईटा के बराबर है, तो हमें ये गिवन है. और तो बेसिकली दिस इज द बेसिक इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड V. सो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ बोथ सेंटर्स. तो बेसिकली सेंटर, दोनों सेंटर की वेलोसिटी निकालनी है. तो जो इस तरफ हो रहा है वो उस तरफ भी वही हो रहा होगा, उधर वेलोसिटी V अंदर की तरफ होगी.
सो सेंटर्स, दोनों सेंटर्स की वेलोसिटी v है अंदर की तरफ. So we just have to find v from this equation, and we have v equal to r omega, we have r equal to eta r. So after solving we get this answer. So this is v, and therefore velocity of approach is 2v, because left वाले बॉबिन की velocity भी v है और इसकी भी v है. So velocity of approach is 2v. So we get this answer. So just like all the problems in this book, this is a very interesting problem कि नया भी लगता है करने में, बट आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक ही यूज़ हो रहे हैं. सो इट्स द परफेक्ट बुक टू प्रैक्टिस. This section of the book, Build Your Understanding, is perfect for practicing for JEE Advanced. So I hope you liked the video, and thanks for watching.